Yes, good morning, students. Am I Good morning, ma'am. Good morning. So, students, firstly, let me tell you, I am Dr. Anupama Bhardwaj. Okay, and today we are going to study about some organelles and their functions also. So, you already have organelles. You already learned in the last class and the previous classes also. So, today is kind of revision. You are going to recall those again. Okay. And I want everyone to participate because it is inside us only. All organisms are present inside us only. So let's explore it. Yes or no? Want to explore? Yeah. That's good. That's good, students. So now, firstly, we are going to begin with eukaryotic. Okay. So firstly, tell me, we humans are eukaryotic or prokaryotic? Eukaryotic? Yes, we are eukaryotes. Who is agree with this? Just raise your hand. Raise your hand if you agree that we are eukaryotic. Okay, that's good. Everyone is raising their hand. That's good. Lower your hand, student. That's good. Now, who can tell me little bit about prokaryotic that you already learned in your last class? Who can tell me? Just give me brief. Just give me brief. Who can tell me? Okay, firstly, tell me, is this only one section of 11 or two? One section. That's great. So now I will call roll number wise. Okay, so roll number 3 is present. Roll number 3. Roll numbers are not assigned yet, ma'am. Okay, roll numbers are not assigned. Okay, so I will call then rows wise. Okay. So second rows, okay, towards blue wall, not curtain. Therefore, I'm dividing into two rows. One with the curtain, one with the wall, blue wall. Okay. अब आपकी दो teams बन गई हैं. So let's see who will win at the end of the session. So जो ब्लू वॉल के साथ है उसको मैं ब्लू टीम दे रही हूँ और जो कर्टन के साथ है उसको मैं ग्रीन टीम दे रही हूँ. ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन टीम नाउ वी हैव. So from blue team, okay, from the blue team, second row, yellow t-shirt girl, stand up. Yes. Now give me a little bit, whatever you know about the prokaryote, just tell me about that. What is prokaryote? Ma'am, in nucleus enveloped is absent. Okay, okay, you were absent, that's fine. But you already learned in the class 6th also, you learned in the class 7th also, you learned in class 9th also about these organisms. So कुछ थोड़ा बहुत that you know, जो back of the mind में कई बार हमें रहता है ना कि yes, these are prokaryotes. Example ही दे दो, whatever you know. कोई एग्जाम्पल ही दे दो. आपने अभी हैंड रेस किया था कि वी आर यूकैरियोट्स. अगर आप कह रहे हो कि वी आर यूकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स क्या हुआ बेटा? क्या हुआ प्रोकैरियोट्स? अगर हम कह रहे हैं हम यूकैरियोट्स, यू रेज्ड योर हैंड, है ना? आपने हैंड रेस किया था, आई हैव सीन. तो अगर आपने कहा हम यूकैरियोट्स है और हमने हैंड रेस किया, तो व्हाई वी आर नॉट प्रोकैरियोट्स? क्यों नहीं है हम प्रोकैरियोट्स? अच्छा, मैं एक और चांस दूंगी ब्लू टीम को. ब्लू टीम में से कौन बता सकता है व्हाई वी आर नॉट प्रोकैरियोट्स, या फिर मुझे ये बता सकता है व्हाट आर प्रोकैरियोट्स? ब्लू टीम, ब्लू टीम से कोई भी रेज योर हैंड एंड कम फॉरवर्ड. ब्लू टीम. यस, दैट्स गुड. यस बेटा बताओ. Prokaryotes lack two nucleus. They are generally smaller in size. यस, दे आर स्मॉलर इन साइज एंड ओके. अब मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, आप ही से पूछूंगी मैं. तो इसमें एक वर्ड है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, दैट इज कॉमन वर्ड, दैट इज कैरियोट. व्हाट डज इट मीन? कैरियोट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस. सबको पता है ना? न्यूक्लियस, इट मींस न्यूक्लियस. अब सिर्फ जो आगे प्रीफिक्स लगा हुआ है, दैट इज यू और प्रो, दैट मेक्स द डिफरेंस. यस. अगर मैं यहाँ पर प्रो लगा देती हूँ और यहाँ पर यू लगा देती हूँ, तो इससे हमारे दो अलग टर्म्स बन जाती हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. यस.
ऐसे ही होता है। यस। अब O मतलब क्या होता है और U मतलब क्या होता है? Pro means primitive and U means वाओ, तो बेटा प्रिमिटिव एंड U मीन्स ट्रू। और इसको हम यहाँ पर फॉल्स भी कर सकते हैं, वी कैन राइट फॉल्स ऑल्सो। अब इसका क्या मतलब बन के आता है? अब बताओ क्या मतलब बनता है अगर हम प्रोकैरियोट्स की हम सोचें, इफ यू कंसीडर ओनली दिस मच, तो इसका क्या बनता है? तो हम क्या कह सकते हैं इसको कलेक्टिवली, व्हाट वी कॉल प्रोकैरियोट को हम क्या कह सकते हैं नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में? फॉल्स न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यस, कैन वी से दैट? Yes. यस। तो प्रोकैरियोटिक्स कौन हो गए? वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, जिनके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इज इट क्लियर? तो यूकैरियोट्स क्या हो गए? ऑपोजिट ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या हुए बेटा? यूकैरियोट्स क्या हुए? they have यस यस, यू आर सेइंग राइट, बोलो। eukaryotes. यस Eukaryotes. yes, those who are having true nucleus, like humans we have true nucleus, well defined nucleus, हम देख के बोल सकते हैं यस इट्स अ न्यूक्लियस। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास एक डिफाइंड मतलब हम कहें कि अगर उसको देख के हम कह नहीं सकते कि इट्स अ न्यूक्लियस। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज कर लो यहाँ पर मेरे पास एक बॉटल है दिख रही है, सो वी कैन कॉल इट बॉटल। अगर मैं इसको तोड़ दूं और ऐसे टुकड़े टुकड़े करके रख दूं, कैन वी कॉल इट बॉटल? बिकॉज नाउ इट इज नॉट डिफाइंड, इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। ओके, वी कैन से पीसीज ऑफ बॉटल्स, है ना? बॉटल दैट इज डिफाइंड, उसका स्ट्रक्चर है, सो वी कॉल इट बॉटल। अगर उसका स्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास वो पार्ट्स हैं, सो वी कांट कॉल इट बॉटल, है ना? सिमिलरली हियर, न्यूक्लियस का समान है बट इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, सो इट इज प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब मुझे इसका एग्जांपल चाहिए फ्रॉम ग्रीन टी। प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल ग्रीन टी कौन दे सकता है? Who can give me the example of prokaryotes? Bacterial Bacteria. Prokaryote. और हमने यूकैरियोट्स तो अपने आप को पहले ही कह दिया था, सो दैट्स गुड। अभी दोनों टीम के बराबर हैं, ठीक है, बोथ आर ऑन सेम पेज, सो दैट्स गुड। ग्रीन एंड ब्लू यू बोथ आर ऑन सेम पेज, दोनों ने सही आंसर दिया अभी, ठीक है। सो दैट्स गुड। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। वी गॉट द लिटिल बिट अबाउट द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आपने लास्ट क्लास में बेटा प्रोकैरियोट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी जो चीज होती है वो बाउंड नहीं होती, कवर्ड नहीं है, ठीक है। उसको जो है कोई भी जो है वॉल नहीं लगी हुई, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं लगी हुई, सब खुला पड़ा हुआ है। एवरीथिंग इज लाइक दिस, ठीक है। सो लेट्स सी हियर, इफ आई से दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, सिर्फ उसमें जो एक मेम्ब्रेन है, जो उसमें कवरिंग है, इट इज द ओनली थिंग। क्या कहते हैं इसको? दिस कवरिंग इज कॉल्ड व्हाट? ब्लू टीम से चाहिए मुझे आंसर, आई नीड आंसर फ्रॉम द ब्लू टीम। यस, व्हाट डू वी कॉल इट बेटा? दिस कवरिंग? यस, plasma membrane. Yes, it is plasma membrane, and this is the membranous structure. यही अकेला एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इन प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर, ठीक है। बस आपने याद रखना है प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही कवरिंग है। जैसे सपोज कर लो भी आप जिस हॉल में बैठे हो, ऑडिटोरियम में बैठे हो, इसमें सिर्फ एक ही वॉल है ना, कवरिंग है, बाकी पार्टीशन कुछ नहीं है ना। आप सब एक साथ बैठ गए हो पूरे आराम से, इट इज लाइक दिस, आपका जो दिख रहा है मुझे वो ऐसे है, only this is the covering right now, है ना। so this is the boundary, similarly prokaryotic की भी सिर्फ एक ही बाउंड्री है, ठीक है। बाकी सब आप जैसे आराम से बैठे हो वैसे ही जो इसके अंदर जो चीजें हैं ऐसे ही बैठी। अब जो न्यूक्लियस है, मैंने क्या कहा, डिफाइंड नहीं है, नॉट कवर्ड,
तो अब यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियस का जो सामान होता है वो ऐसे ही पड़ा है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, दैट यू ऑलरेडी लर्न इन योर क्लास, लास्ट क्लास। आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफिंग देन सो दैट वी कैन मूव टू द यूकैरियोट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास। नाउ मूविंग टू द यूकैरियोट। अब यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है, इसी का जस्ट ऑपोजिट। एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड, एवरीथिंग इज डिफाइंड, सो दैट इज यूकैरियोट। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अब आप जिस क्लास में बैठे हो, मैंने उसमें कहा सिर्फ एक बाउंड्री है, लेकिन अगर आप अपने घर की बात करो या फिर स्कूल में भी आगे बाकी क्लासेस की बात करो, सपोज दिस इज योर स्कूल, ये आपकी स्कूल की बाउंड्री है। ठीक है, अब इस स्कूल में भी फर्दर आपकी बिल्डिंग्स होंगी। ठीक है, इस बिल्डिंग्स के अंदर फर्दर क्लासेस होंगी, ऐसे क्लासेस है। सपोज कर लो ये 11th क्लास है, ये 12th क्लास है, ये 10th है, ये 9th है, दिस इज 8 7 और मेनी मोर। ठीक है, अब 8th क्लास इस बाउंड्री के अंदर है, किसके अंदर, स्कूल के अंदर एक और बाउंड्री है उसके अंदर। अब हमें डिफाइंड है 8th क्लास इज सिटिंग हियर, 12th क्लास इज सिटिंग इन दिस बाउंड्री। ठीक है, 12th क्लास इस बाउंड्री के अंदर है, 11th क्लास इज इन दिस बाउंड्री। ठीक है, ऐसे ही सो ऑन, और क्लासेस अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर वर्क कर रही है। ऐसा तो नहीं है अभी 11th क्लास के साथ 10th क्लास और 9th क्लास इज आल्सो स्टडिंग। इज दिस हैपनिंग? ऐसा हो रहा है? नहीं ना, मिक्सिंग नहीं हो रही ना भाई, नो मिक्सिंग, सब सब डिफाइंड है। यहाँ पर 11th क्लास ही है। ठीक है, सो नाउ इट इज डिफाइंड कि आप इस बाउंड्री में यही चीज हो रही है। यू हैव ए बाउंड्री, यू हैव ए कवरेज। ठीक है, वही चीज यूकैरियोटिक सेल्स में होती है बेटा। जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो ये पहले हमने प्रोकैरियोट में पढ़ा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, इट इज हैविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जैसे आपके स्कूल की बाउंड्री है ये मेन, वैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब जो बाकी इसके अंदर होगा वो भी मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, मोस्टली जो ऑर्गेनेलीज है वो मेम्ब्रेन के अंदर है। हियर आई एम यूजिंग द वर्ड मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ईच एंड एवरी, आई एम सेइंग मोस्टली, सो प्लीज गो थ्रू दैट, मोस्टली। अब जब हम मोस्टली वर्ड कहते हैं तो हम ये, इसका मतलब होता है सभी नहीं, कुछ। ठीक है, 80% जो ऑर्गेनाइज है दीज आर कवर्ड। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहले आएगा वो कौन सा आएगा, कौन सी ऑर्गेनाइज आएगी? तो सबसे पहले हम कहते हैं सेंटर में न्यूक्लियस आ गया। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियस? क्या होता है न्यूक्लियस में? ओके, तो ये हमारा सेंटर में न्यूक्लियस आ गया जो डबल मेम्ब्रेन होता है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है बेटा, इसको साथ साथ बनाते चलो। इट्स ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक और ऑर्गेनेली है इन द सेंटर, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, इट्स अ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मतलब एक तो लेयर है, उसके साथ एक और लेयर है। इट इज लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सो बी टीम से मुझे बताओ, सॉरी बी टीम की ब्लू टीम से मुझे बताओ, न्यूक्लियस में क्या होता है, व्हाट इज एन इनसाइड न्यूक्लियस, कि जिसकी वजह से हम इसे कंट्रोल रूम कहते हैं सेल का। ये हमारे सेल को कंट्रोल कर रहा है, इट इज बॉस ऑफ आवर सेल। ब्लू टीम से व्हाट इज इन न्यूक्लियस दैट मेक्स इट बॉस? यस, ब्लू टीम से मुझे थर्ड, जो थर्ड रो है, ठीक है, थर्ड रो में कॉर्नर वर्ड्स कर्टन वाली साइड जो गर्ल है वो खड़े होके बताए आंसर बेटा। बेटा कर्टन वाली साइड, कर्टन वाली साइड आप नहीं, आप तो वॉल वाली साइड हो गए। येलो वाले आप बैठ जाओ, जो आपकी इस साइड कॉर्नर में दूसरी साइड है। बेटा यू, यस, व्हाट न्यूक्लियस, व्हाट इज साइड द न्यूक्लियस? There is DNA inside the nucleus. डीएनए
न्यूक्लियस। डीएनए क्या काम करता है बेटा? व्हाट इज द रोल? We are not able to listen from. यस बेटा। Forward. I am not able to listen. What are you saying? Okay, I'm saying what is the role of DNA? You said DNA is in nucleus. That's right. You are right. What does DNA do? क्या करता है DNA? DNA is a Yes, yes. DNA is a genetic material of the cell. Genetic material. That's right. सही तो बोला एकदम. Yes, you're right. Genetic material. और ये genetic material हमें कहाँ से मिल रहा है? Genetic material it is inherited from a parent. Yes, that's good. सारा तो आंसर आता है. That's good. Sit down, बेटा. Sit down. That's correct. ठीक है? So yes, you're right. So perfectly right. So yes, that's the correct answer. ठीक है? So it's a correct answer. Yes, ऐसा होता है. DNA होता है. DNA is a genetic material and it is present in nucleus. ठीक है? अब जो genetic material DNA present है यहाँ पर, okay, DNA is present. Plus genes are also present. ठीक है? अब ये दोनों क्या करते हैं? जो हमारे प्रोटीन्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं. प्रोटीन की सिंथेसिस बनना. ठीक है? प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल्ड बाय डीएनए और जीन्स. ठीक है? ये कंट्रोल करते हैं. अब जब ये कंट्रोल करते हैं तो प्रोटीन जो है वो कहाँ चाहिए? प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर सेल्स. जो भी हमारी बॉडी में हो रहा है, हार्मोन्स ले लो. ठीक है? इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडीज, स्किन, ठीक है, हेयर, everywhere is protein. So protein synthesis is controlled by genes, DNA, and that means cells functioning is controlled by DNA and genes. So that's why this nucleus is called control house or control room. Is it clear? Raise your hand. This concept is clear. If this is clear, raise your hand, beta. Okay, that's good. Sit, lower your hand. ठीक है? So that is what. So अभी हमने किया न्यूक्लियस का. अब बेटा आप सबने क्या करना है? मेक अ टेबल. एक टेबल बनाओ. ठीक है? Of organelles and their functions. Organelles and their function. ये बड़ा सा टेबल बनेगा. सो पूरा एक फ्रेश पेज या डबल पेज लेना. ओके, एक डबल पेज, क्योंकि इसके बाद एक और है. So these are the organelles present in eukaryotes, even prokaryotes. It's a collective. ठीक है? Even in plants. So आप में से किस किस को पता है कि सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट है या नहीं? Who knows? Do we have cell wall? क्या हमारे अंदर सेल वॉल है? Yes. ग्रीन टीम से पूछ रही हूँ. ग्रीन टीम, do we have cell wall? No, ma'am. That's good. We don't have cell wall. ठीक है? We humans, we animals, we don't have cell wall. But cell wall is present in plants, fungal cell or protista. Okay? That gives them protection because plant एक ही जगह रहता है. Extreme conditions में ये जो organisms रहते हैं, to survive those extreme conditions, they need extra protection in the form of cell wall. Okay? So I think I need to adjust the brightness so that you can easily see. I hope now it is pretty clear. So first is cell wall. ठीक है? तो cell wall का मैंने आपको बताया. What is the role of the cell wall? First is cell wall. Now cell wall के next क्या आता है? Plasma membrane. That is present in prokaryotes, present in humans also, eukaryotes, animal cell, plant cells. Okay. The plasma membrane allow passage of certain substances in or out of the cell. So basically it's a, we can say guard. ये guard है kind of, कि किसको अंदर जाने देना है और किसको नहीं जाने देना. It's just like the guards we have. हमारी अगर सोसाइटी में, हमारे स्कूल में जो गार्ड्स होते हैं,
जो लॉ करते हैं, कुछ लोगों को अंदर जाना और कुछ को नहीं। सिमिलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क्स इन दैट मैनर ओनली, ठीक है। कुछ को अंदर जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी। दैट वी विल लर्न इन लेटर ऑन क्यों। देयर इज अ रीजन फॉर दिस, ठीक है। सो इट कंट्रोल्स substances in and out of the cell, so maintains cells integrity। integrity मतलब उसका साइज, उसका जो सामान है उसको मेंटेन करती है, ना ज्यादा हो ना कम हो। इट शुड बी परफेक्ट। तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वी कॉल इट सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो। न्यूक्लियस कोल्ड रूम, जिसके बारे में हमने जस्ट पढ़ा है, इट स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज। तो सेल एक्टिविटीज कैसे कंट्रोल करता है? बिकॉज इट कंट्रोल्स द synthesis of proteins, and proteins is important for the cell's functioning. That is how it controls the cell's activity. जब मैं आपको ये न्यूक्लियोलस बताऊंगी ना, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, जो आपके आगे नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो मैं आपको चीज बता रही हूँ, वट एवर आई एम टेलिंग यू, इट इज रिलेटेड टू योर नीट एग्जाम ऑल्सो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑल्सो, और योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So these are some important concepts that you should learn. Nucleus is an organelle that is within an organelle. न्यूक्लियस के अंदर एक और जो ऑर्गेनेली है, दैट इज न्यूक्लियोलस। तो ये क्वेश्चन आपके बेटा नीट के एग्जाम में भी हो। नेम द ऑर्गेनेली दैट इज प्रेजेंट इन अनदर ऑर्गेनेली, सो इट्स अ न्यूक्लियोलस, ठीक है। ऑर्गेनेली विद इन अ ऑर्गेनेली। सो इट प्रोड्यूस आरआरएनए, assembles राइबोसोम। जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, दैट इज द मेन वी कैन से प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो इट assembles here only, यहाँ बनता है। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स, जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। वी कैन कॉल इट प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑल्सो, ठीक है। सो इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन, कैन बी फ्री इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? दैट इज अ फ्लूइड, ओके। तो उसमें एज सच भी प्रेजेंट हो सकता है, और एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ अगर ये अटैच होता है, ठीक है, तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो उसके साथ भी अटैच होकर प्रोटीन बनाता है। इसका यहाँ तक हो चुका है टिल राइबोसोम। हाउ मेनी ऑफ यू डन? Okay, many of you, that's good. So now coming to RER, why it is called RER, means rough endoplasmic reticulum। क्यों कहते हैं? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, वो ऐसा होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा दिखता है। जब इसके साथ ये इसके ऊपर राइबोसोम आके अटैच हो जाता है, ओके, व्हेन राइबोसोम गेट अटैच्ड टू इट, ओके, सपोज लाइक दिस, जो पहले एकदम स्मूथ नजर आ रहा था माइक्रोस्कोप में, नाउ इट इज लुकिंग लाइक दिस। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई दाग है, छेद है। सो बिकॉज ऑफ दैट, नाउ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। रफ किस वजह से लगता है? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट। राइबोसोम्स की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें दिखने में रफ लगता है, सो वी कॉल इट RER, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड RER। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम इसके साथ है,
So it is involved in protein synthesis and its modification. जो प्रोटीन बन रहा है वो रॉ है, वो खराब हो सकता है, तो उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसको जो है एक तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाता है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। हाउ? so that it can stay as such, it can be used further. Okay, so that is the role. एक आ जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम्स नहीं है. Those who are having ribosomes called rough endoplasmic reticulum. Those who do not have rough ribosomes, those are looks smooth, so they are called smooth endoplasmic reticulum. क्लियर है? रफ में और स्मूथ में क्या डिफरेंस है? क्यों स्मूथ को हम स्मूथ कह रहे हैं और रफ को रफ कह रहे हैं? रेज योर हैंड इफ दिस इज क्लियर कि व्हाई रफ इज कॉल्ड रफ, स्मूथ इज कॉल्ड स्मूथ. ओके, दैट्स गुड. सो स्मूथ का रोल, क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं है, सो इसका प्रोटीन से लेना देना नहीं है. इसका लेना देना किससे? सिंथेसाइजेस लिपिड्स, मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड जो टॉक्सिक्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना. ठीक है, जो इवन मेडिसिन वगैरह है उसको भी थोड़ा सा इफेक्ट को कम करना. आते हैं गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, आर्या, जो प्रोटीन बनाया उसको हमने पैक करना होता है. हमारा सेल उसको पैक करता है. पैक करके क्या करना होता है? अगर हमारे पास हम कोई ऑर्डर कर रहे हैं तो पैक होता है ना, फिर वो इधर उधर जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है. ऐसा तो नहीं है ना हमारे पास हमने अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो वो खुला आ रहा है, पैक हो गया होता है ना. यस, वी गेट पैक प्रोडक्ट, है ना, उसमें सील लगी होती है. अब वो पैकिंग का क्या फायदा होता है बेटा? अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है जो हमने ऑर्डर किया है पैक करके आता है, उसका क्या फायदा होता है? क्या फायदा होता है? ब्यूटी. नॉर्मल नॉर्मल सीन में पूछ रही हूँ, हमने कोई ऑर्डर किया है, किसी ऑनलाइन शॉपिंग किया और वो पैक होके आ रहा है, वाई सो? वो ऐसे क्यों नहीं दे देते कि चलो हमने जो है पेन पेंसिल ऑर्डर किया है ऐसे पकड़ा दिया? वाई इट इज पैक्ड? यस ब्यूटी. फोर्थ फोर्थ बेंच से बताओ मुझे, मिडल गर्ल स्काई ब्लू. यस यस, येलो जिसकी टेक्स्ट बुक है. चलो बेटा आप बताओ. मिडल, हाँ. वाई ऑर्डर, और जो हमारा जो हमने कोरियर, जो भी हमने सामान ऑर्डर किया वो पैक क्यों होता है? वाई इट इज पैक्ड? आगे आगे बताओ बेटा. यू आर नॉट यस, टू प्रोटेक्ट, है ना. अगर वो खुला रहेगा कोई भी लेके चला जाएगा, उसके ऊपर एड्रेस नहीं लिखा होगा, नाम नहीं लिखा होगा, तो कैसे वो हम तक पहुंचेगा, है ना? वो तो गुम हो सकता है. सो दैट्स व्हाई फॉर द प्रोटेक्शन और फॉर द इजी वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन, इट इज, वी कैन से पैक्ड. सिमिलरली जो हमारा प्रोटीन बना है कहाँ जाएगा? प्रोटीन बना रहे कहीं तो जाएगा, कहीं तो यूज होगा, तभी बन रहा है ना. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम उसने बना दिया, लेकिन वो पैक होएगा. ठीक है, ऑर्डर प्लेस हो चुका है, वो पैक होना है. कहाँ होगा? गोल्जी एपरेटस में पैक होएगा. गोल्जी एपरेटस फिर बताएगा कहाँ जाना है, सेल के अंदर जाना है, सेल से बाहर जाना है, क्या काम करना है. सो दैट इज डन बाय गोल्जी एपरेटस. सो गोल्जी एपरेटस मॉडिफाइज, सॉर्ट्स, पैकेजेस प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट. Is it clear? Golgi का क्या रोल है? It's just like courier service who packed, ठीक है, your proteins and then decide it will store or it will transport. Is it clear? What is the role of Golgi? Raise your hand if it's clear. See what is the role of Golgi? That's good. That's good. So now move to the next. Mitochondria. So mitochondria is powerhouse. It is also called powerhouse of the cell. Why? Obviously, if we say someone is powerhouse of the, our house. Suppose कर लो, अगर हम अपने घर पे किसी को कहते हैं कि हमारे घर का ना power house है. Why do we call someone our powerhouse? Because it gives us energy. उसके आने से घर में जो है चहल पहल शुरू हो जाती है ना? कोई एनर्जी के साथ आता है. So we call it powerhouse. Similarly, हमारे जो सेल है उसमें एक ऐसी ऑर्गेनेली है
जिसके होने के कारण हमारा सेल एक्टिव रहता है, बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी। और जो एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं, एटीपी। ठीक है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। ओके, एटीपी इज एनर्जी करेंसी। नाउ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का क्या काम है? अब जो हमने, जो हमारी सेल है उसने काम कर लिया, ओके, आवर सेल हैज डन वेरी वर्क, और बहुत चीजें हुई इस काम के टाइम, प्रोटीन बना, लिपिड बना, मैनी थिंग्स हैज सिंथेसाइज्ड। अब कुछ इन सिंथेसिस के प्रोसेस में कुछ ऐसा भी बना दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, और सम वेस्ट प्रोडक्ट आल्सो जनरेटेड। इवन हम घर पे भी अगर कुछ काम करने लगते हैं, अगर हम किचन में काम कर रहे हैं, इफ वी आर बेकिंग, इफ वी आर कुकिंग समथिंग, तो वेस्ट तो निकलता है ना, किचन वेस्ट निकलता है। वैसे ही हमारा सेल जब कुछ बनाता है तो कुछ वेस्ट भी निकलता है। सभी चीज तो यूटिलाइज नहीं होती, सभी चीज तो रिक्वायर्ड नहीं होती है ना। सिमिलरली ऐसे ही जो है हमारे सेल में जो कुछ जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। वेयर लाइसोसोम्स, लाइसोसोम जो है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि ये जो वेस्ट है और जो डैमेज्ड ऑर्गेनेलिज है, कुछ ऑर्गेनेलिज अगर खराब हो गई है तो उनको वो जो है ब्रेक कर देता है, उनको वो तोड़ देता है, ताकि वो हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है, अब आ जाता है पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम फैटी एसिड्स को ब्रेक करता है, और जो कोई बाई प्रोडक्ट है, जैसे कुछ चीज बन रही है उसके साथ जो कुछ एक्स्ट्रा कुछ सामान निकला है, ठीक है, जैसे कि अगर हम कह दें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो उनको न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज मतलब क्या हो गया कि उस इफेक्ट को खत्म करता है। ठीक है, दैट इज द रोल ऑफ पेरोक्सीसोम्स। Cytoskeleton. Cyto means cell. Skeleton we already know. In bones also we have a skeleton framework. ठीक है? It provides structural support to our cell. ठीक है? और ये हेल्प करता है सेल को मूव करने में। जैसे हमारा जो स्केलेटन हमें हेल्प करता है मूव करने में, वैसे ही जो सेल का स्केलेटन है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट। ठीक है, अब सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ठीक है, नॉट इन प्लांट सेल्स। इट helps in organizing microtubules. Microtubules are proteins only. These are like rod shape, hollow. ठीक है, ऐसे होते हैं। तो ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। तो जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, ठीक है, देयर यू विल लर्न अबाउट माइटोसिस, मियोसिस, इवन इन दिस चैप्टर आल्सो लेटर ऑन। ठीक है, vacuoles. Vacuoles are present in animals also, but very small size. उसका इतना कोई खास रोल नहीं होता, बट इन प्लांट्स इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वैक्यूल्स का प्लांट में मेन रोल है, नॉट इन एनिमल्स, बिकॉज प्लांट का जो सेल है उसका जो मेजर पार्ट है इट इज कवर्ड बाय वैक्यूल्स, सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, उसका जो शेप साइज है वो ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, स्टोर्स न्यूट्रिएंट वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेंटेन्स टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल्स। लास्ट आता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट में प्रेजेंट है, नॉट इन एनिमल्स। ठीक है, यहां पर आपने पहले ही पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब इनमें से अगर मैं बताऊं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया is also double membrane structure. Chloroplast is also double membrane structure. Like nucleus, mitochondria and chloroplast are also double membrane structure. Is it done? Yes. Is it done or not? If it's done, raise your hand. Okay, you are doing. Okay. Many of you are very fast.
Is it done, beta? I hope it's done. Yes? Yes. Yes. So now it's a competition now going to begin in between blue and green team. कैसे? अभी हमने ये सारा बहुत ध्यान से एक बार हमने पढ़ा है. Now it's a riddle time. पहेली खेलेंगे हम. ठीक है? One by one I will call from each team. Firstly, blue team, fifth bench, middle girl. Center में जो girl है, fifth bench. Yes, beta. I am the boss. I hold the code. I run the cell. I am in control mode. Inside me, the DNA stays, telling proteins how to behave. Who am I? Nucleus. Nucleus. That's good. That's good. It's nucleus. Yes. तो क्योंकि I am the boss. I hold the code. Code means gene समझ लो अभी आप. ठीक है. I run the cell. I control और I'm in control mode. Inside me DNA stays और किसको control कर रहा है? Proteins that we learned. So that's good. ठीक है. Sit down. Sit down, beta. Now from the green team. Green team. Next riddle is for you. And same fifth bench. Fifth bench middle girl. Green team, fifth bench, middle girl. Girl and boy, girly है हाँ. I make a protein. I make proteins day and night on the rough ER or in plain sight. I'm tiny but mighty. Without me, you will bad. The builders, your body can't get back. Who am I? Yes, beta. Ribosomes. Yes, that's correct. बहुत जल्दी सभी आंसर दे रहे हैं. That's really good to know that. So yes, it's ribosomes. So how do we know that? Because it makes protein day and night, or it can be present on RER or in a cytoplasm as such. So that's good. ठीक है? Now from the blue team. Now blue team, be ready. Blue team से आ जाओ. First bench, red t-shirt girl. First bench, red t-shirt girl. Blue team, first bench. हाँ बेटा पढ़ लो. I am smooth. I am sleek. With no dots you see. Making lipids and detoxifying is the job for me. I help in breaking toxins down without a single ribosome around. Who am I? Endoplasmic reticulum. That's correct. It's smooth endoplasmic reticulum. SER. अभी मैं SER लिख रही हूँ क्योंकि इसके पास कोई राइबोसोम नहीं होता. Okay, that's good. That's really good to know that. सबको फटाफट आ रहा है. Now, same green team, red t-shirt. आ जाओ. First bench. I am stacked like pancakes, neat and tall. I pack and ship proteins, giving them a call. From one place to another, I make them go in a vesicles to where they need to show. Who am I? Golgi apparatus. Golgi apparatus. That's good. That's good. Sit down, beta. So it's a Golgi apparatus. तो हमने अभी पढ़ा था ना कौन पैक करता है. इट्स Golgi who pack proteins. ठीक है. So that's correct. ठीक है. So that's good. चलो next चलते हैं. Back to blue team. ठीक है. Blue team में आ जाओ. Last से corner girl. Blue team last bench corner. Last bench से आ जाओ. Yes बेटा. हाँ. I'm the powerhouse, giving the cell its might, turning food to energy day and night. With my ATP, you will stay alive. Without me, no cell could survive. Who am I? Yes, beta, speak it loud. Mitochondria. Mitochondria, yes. So here we get the hint. I'm the powerhouse. Okay. So ATP. So this gives us the correct answer. That is mitochondria. That's correct. It's a mitochondria. Okay.
Now green team, last bench boy. आजो बेटा. Last bench boy, red t-shirt. हाँ जो. I am green. Only in leaves you will find catching sunlight, leaving darkness behind. I turn light to sugar, a magic trick. Photosynthesis is my special thing. Who am I? Chloroplast. That's good. So answer is chloroplast. That's the correct answer. Chloroplast. That's really good. So that was the competition between both green and blue and both. What could I say? टाई हो गया मैच तो. सभी ने सही आंसर दे दिया. अब क्या करें? व्हाट शुड वी डू? टाई ब्रेक होना चाहिए या दोनों को विन होना चाहिए? व्हाट डू यू से? हाँ, टाई ब्रेक होना चाहिए. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. अब देखते हैं इसको पहले कौन देता है. I clean up mess, digest with care, worn out parts, waste, I will repair. I'm full of enzymes, locked up tight, letting loose when the time is right. Who am I? Lysosomes. Green team. It's green team. That's good. It's green team who has given answer first. So yes, it's lysosomes. So here green team win the match. ठीक है? It's okay. सबका बराबर ही था. लास्ट में एक क्वेश्चन से हुआ. It's okay. है ना? नेक्स्ट टाइम ब्लू टीम की फिर से चांस आ जाएगा. It's fine. Okay. So that is what. So now, yes, we have time. So let's quickly do one thing. Let's take some questions. Okay, basic questions. ठीक है? First question from my side. Okay, चलो इसको भी टाई ब्रेक कर दे. एक तो हो गया, एक और क्वेश्चन देती हूँ. चलो ठीक है. वैसे तो ग्रीन टीम जीत चुकी है. सो अगेन आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, ये नेक्स्ट लेवल के लिए हो जाता है. ठीक है. In eukaryotes, why there are so many organelles? But in prokaryotes, we don't have so much organelles, or especially the membrane part. Because eukaryotes are bigger. Eukaryotes are bigger, that's why. They need more cells to manage. That's how more organisms. Okay, who is from which team? Who is saying? I'm not able to understand. Okay, okay. Green team. Yes, beta. And I was saying that in eukaryotes, the body size is bigger, so to manage all the activities, more organelles are required. Very close to the, no, you're very close to the answer. You're going parallel to the answer. Here we go. Because eukaryotes mostly are multicellular. Yes. Okay. Because to divide the labor, जो काम है, अब देखो एक काम जो है, एक अगर हमें कहें एक जो है पर्सन वो काम कर रहा है इतना सारा, सपोज कर लो. ठीक है. अब वही काम 10 लोग और आगे करें तो इट विल बी इजी और हार्ड. क्या होगा? जल्दी होगा या और लेट होएगा अगर और भी हेल्प करने को आ जाए? बताओ. जल्दी होएगा. तो सेम वही जो है, अगर एक ऑर्गेनाइली जो है सारे काम कर रही है, इट विल टेक टाइम. लेकिन अगर हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया को जो है एनर्जी बनानी है. ठीक है. जो लाइसोसोम है उसने क्या कहते हैं, जो डिटॉक्सिफाई करना है. जो न्यूक्लियस है उसने डीएनए का काम करना है. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने जो है प्रोटीन बनाना है साथ में राइबोसोम के साथ, और उसे क्या कहते हैं, सॉर्ट करना है. गॉल्जी बॉडी जो है उसने जो है पैक करना है. सो नाउ दे हैव देयर टास्क टू डू. उनके पास अपना अपना काम है, उन्हें इंटरफेयर नहीं करना. न्यूक्लियस का काम डीएनए का है, वो वही करेगा. गॉल्जी नहीं कर रही डीएनए का काम. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी बनाना, एनर्जी बनाना. दैट इज नॉट डूइंग एनीवेयर एल्स. ठीक है. सो नाउ दे हैव डिवाइड देयर वर्क. डिवीजन ऑफ लेबर इज डन हियर to make the work easy efficiently. So that's why we have multiple organelles. Is it clear? Yes. Now coming to power house, जिसको हम अपना power house कहते हैं. इसको बनाओ फटाफट. This is our mitochondria.
This is our mitochondria. Double membrane structure. Okay, it's a double membrane structure. So this is outer membrane. It's the outer membrane. It's the inner membrane. और जो ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस हमें दिख रहा है, वी कैन इजीली सी द स्पेस हियर. ओके, so this space is intermembrane space. Intermembrane space. अब ये जो फोल्ड्स हैं, ये जो मेम्ब्रेन ने ये फोल्ड्स बनाए, व्हाट डू वी कॉल इट? व्हाट डू वी कॉल दिस फोल्ड्स? क्या कहते हैं बेटा? कोई कौन बताएगा? कौन सी टीम से बताएगा? हैंड रेस करो. Yes, yes. Green team, third bench. Yes, yellow t-shirt girl. Cristae. Yes. This is called cristae. And cristae is very important because it increases surface area. Increases surface area so that mitochondria can make more ATPs. ठीक है? ये surface area को increase करता है cristae. अब ये क्रिस्टे पे आपको ये रैकेट जैसा दिख रहा है, बैडमिंटन जैसा कुछ, वो क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज? अब जो एटीपी है वो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कौन बनाता है? क्रिस्टे पे आपको ये दिख रहा है. व्हाट इज दिस व्हाट दिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर? इट इज ऑक्सीजोम. ठीक है, इट्स ऑक्सीजोम. इट्स ऑक्सीजोम. ठीक है. अब एक चीज जो बेटा, और ये जो बीच में अब ये जो स्पेस है यहाँ पर, इट इज मैट्रिक्स. इट इज मैट्रिक्स. सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. ऑक्सीजोम हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. अभी कैसे करता है बेटा वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इसका डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे. ठीक है, अभी आप फटाफट ये बनाओ. ठीक है. अब ये जो क्रिस्टे का नंबर है, फोल्डिंग है, और ऑक्सीजोम का जो नंबर है, इट डिपेंड्स अपॉन वेदर सेल इज मेटाबोलाइजिंग फास्ट और स्लो. ठीक है, क्या सेल ज्यादा मेटाबोलाइज कर रहा है? ठीक है, अगर वो ज्यादा मेटाबोलाइज कर रहा है, एक्टिव है मेटाबॉलिकली, तो यहाँ पर क्रिस्टाइल ऑक्सीजोम का नंबर बढ़ जाता है क्योंकि दे मेक और दे जनरेट मोर एटीपीज. अगर सेल जो है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, इन दैट केस जो क्रिस्टे है और जो ऑक्सीजोम है, their numbers get decrease also. So depending upon cell is metabolically active or inactive, क्रिस्टे और ऑक्सीजोम नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है, तो ऐसे होता है. अब आ जाते हैं आपके असाइनमेंट में. ठीक है, असाइनमेंट में आ जाते हैं. असाइनमेंट लिया बेटा. Which of the following statements regarding prokaryotic cell structure is correct? So B team, sorry, blue team से फर्स्ट बेंच ब्लू टी शर्ट गर्ल, बेटा आंसर बताओ. डी. यस, इट्स डी बेटा. So mesosomes are involved in respiration and
हमने मीजोसोम्स लास्ट टाइम किया था, जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो है फोल्डिंग होती है ना। सारी तरफ नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि सारी तरफ होगी। एक मिनट, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। दिस इज अ मीजोसोम। इन फोल्डिंग जो होती है दैट इज मीजोसोम। इसका 3 काम आता है, सेल रेप्लिकेशन और सॉरी रेस्पिरेशन, it helps in cell respiration and also cell wall formation, and third is DNA replication also. In DNA replication also. So these tasks done by mesosomes. ठीक है, helps by mesosome. Now coming to second, the ribosome in prokaryotes are the ribosomes in prokaryotes, green team से second bench, corner girl, green t-shirt. Second bench, yes. The ribosome in prokaryotes are A option. A option. Yes, 70 years. That's correct. Sit down, beta. Now coming to third question. Blue team say second bench, corner girl, blue t-shirt. Which structure is responsible for imparting antibiotic resistance in some prokaryotic cells? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन देता है? ये हमारे पास बैक्टीरिया है, उसके पास एक जो डीएनए, उसका जो जीनोमिक है, जीनोमिक डीएनए वो कैसा है? ऐसा। उसके साथ आपको एक सर्कुलर डीएनए मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं? जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। इट्स अ प्लाज्मिड। Plasmid also gives antibiotic resistance property to bacteria. Okay, so answer is C. ठीक है, sit down. Now fourth, green team, third bench, corner yellow t-shirt. कॉर्नर जिसने एल्बो मारा, बीच वाली को नहीं दूसरे वाली। हाँ, सब दिखता है बेटा, स्क्रीन बड़ी है। So yes, which of the structure is absent in mycoplasma but present in most other prokaryotes? Cell wall. Yes, C is the correct answer. Sit down, sit down. Now coming same fourth bench, blue team, yellow t-shirt girl. Fourth bench, sorry, fourth है? नहीं, third bench, yellow t-shirt girl. Yes. In photosynthetic prokaryotes like cyanobacteria, the pigments are located in. Yes, beta. D option, chromatophores. क्रोमा से हमें पता लगता है कलर, ठीक है। सो दैट्स नाइस, सिट डाउन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए ग्रीन टीम से फोर्थ बेंच, ग्रीन टी शर्ट गर्ल। हाँ जी, तो which of the following is not a function of mesosomes? C option, ribosomes. Yes, that's good. Now B team से last bench, corner girl, stand up. Gas vacuoles in prokaryotes are primarily found in bacteria. C is the correct answer. C. That's right. Coming to eighth question, green team, second last bench, sky blue shirt boy. Second last bench, sky blue shirt boy. खड़े हो जाओ बेटा. Which of the following surface structures in prokaryotes is involved in attachment but not in motility?
Right. Yes, that's correct. B is the correct option. Sit down. Now, ninth question. Blue team second. Yes, beta. Yes. Can you please repeat 7? 7 का बेटा C है aquatic bacteria. Because gas vacuole होगा तो उनको buoyancy मिलेगी, so they can easily float. ठीक है? That's the reason. Okay. So coming to ninth. Ninth के दो टीम से second last bench corner खड़े हो जाओ बेटा. Identify the correctly matched pair. Identify the correctly matched pair. Yes, बेटा क्या है? Yes, the bacillus rod shape. That's right. Sit down. Coming to 10th question, and for the 10th question, I am going to call third last bench of green team. Third last bench of green team. Blue t-shirt middle में जो लड़का बैठा है. Yes, boy. Stand up. Third last bench. Yes. Cell wall of prokaryotes is formed of 10th question. Yes, बेटा. बेटा क्या बोला? ग्रीन टीम से फर्स्ट बेंच में जो गर्ल बैठी है क्या बोल रहे हो? व्हाट इज Peptidoglycan. पेप्टिडो. अच्छा अच्छा, पेप्टिडोग्लाइकन. यस, दैट्स द करेक्ट आंसर. पेप्टिडोग्लाइकन. दैट्स राइट. Peploglycan is the answer of 10th question. 11th question. Out of gram positive and gram negative bacteria, which is pathogenic? Green and blue. Who will tell me? Out of gram positive or gram negative? Yes. Blue team first bench, red t-shirt girl. Yes. Gram positive. Gram positive is pathogenic. Okay. Green team फटाफट बोल रही है. No, ma'am, it's gram negative. So yes, it's gram negative. Okay, it's gram negative is more pathogenic. ठीक है. और रीजन क्या है? उसके सेल वॉल के कंपोजिशन के कारण. Because of its cell wall composition. ठीक है. So rest we will do in the next class. Reason assertion and case study is left. I will suggest try करो खुद करने की. We will discuss in the next class. ठीक है. Okay, ma'am. Bye. Bye, ma'am.